Hello, everyone. I'm happy to be back with another Young Indian, part of the Voice of the Young series. Right now, we have with us Iram Gul. Let's listen to her. Over to you, Iram. Thank you so much, Subodh sir. I think it's a pleasure to be here, and I have been following your content and all these vidpets which you have been doing with several young people, and I think it's just a pleasure, and I'm really amazed to see how you are giving this platform to young people like me to talk about our journey and our where we are coming from, and I think it's just great. So, just wanted to take this moment to first appreciate that, and also thanks to you for this. Now, coming back to what I'll be doing in this space. So, I'm going to talk about two different things. First, I'm going to talk about myself, my own journey, how I entered. Development sector from engineering sector, how that transition looked like for me, and then I'll also talk about the different kind of spaces which I have encountered and I have explored while being in this journey, so that it's not just me chit chatting about my own kahani, but it also gives something to the viewers as well, especially to those viewers who are maybe sometimes confused and maybe they are also struggling to find their own pathway in development and social sector. I'll start with something about myself. I am from Varanasi, UP. It's a small town in Uttar Pradesh. It's a tier 2 city, and I have been born and brought up in Banaras itself. Um, one thing which I also want to share here is I have also shared this with Subodh sir that I'll be using English as well as Hindi so that it's comfortable for me and other viewers who are comfortable in both languages. So, I was born and brought up in Banaras, and I have completed my schooling from Banaras itself. Um, Coming from a middle class family, education was something जो बहुत ही disparity के साथ दिखा हमें. One thing which I have noticed from my childhood was अगर the more money you have, the more expenses you have, the more facilities you have, you'll get better education. और अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, ये सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, तो आपकी एजुकेशन क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी. मेरे माता पिता ने मुझे एंटर किया था सबसे पहले एक पब्लिक स्कूल में जहां मैंने थोड़े टाइम ही पढ़ाई की. देन माय फादर रियलाइज दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट वेल एंड एडिक्वेट, एंड देन ही डिसाइडेड कि मुझे एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए. तो मुझे एक लो मिडिल क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने मुझे भेजा, जहाँ कहने के लिए वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन वहाँ पे भी एजुकेशन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हियर वाज टाइड टू मनी people could spend. And I think you could see it all around the world. Better resources, better teachers, better opportunities for those who could actually afford it. And this contrast was something that has actually stuck my mind when I was a child, I was a student. बट क्योंकि उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी था, तो आई वॉज फोकस्ड इन माई एजुकेशन स्टडीज़. मैं साइंस से पढ़ी हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा बचपन से ही. तो आफ्टर माई स्कूलिंग आई एंटर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता से. बनारस से कोलकाता जाना was a very difficult decision because from tier 2 to tier 1 बहुत सारे questions थे, एक nervousness भी थी, lack of confidence भी था. बट साथ ही साथ मुझे ये देखना था कि एक टीयर 1 सिटी एक यूथ को क्या क्या ऑफर कर सकती है जो कई बार टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में नहीं मिलता है. और मुझे वो अपॉर्चुनिटीज कोलकाता में मिली. कोलकाता has a very rich culture when it comes to art, literature, free speech, or philanthropy as well. And that's where I started to see the world very differently. I was pursuing my engineering, and at the same time, I was also volunteering with different projects and different NGOs and organizations as well.
क्योंकि मुझे हमेशा से ही सोसाइटी के साथ जुड़कर कुछ करने की इच्छा थी। वो फ्री स्पीच को और वो फ्री विल को मैंने हमेशा से ही बहुत सारे लिटरेचर एलिमेंट में देखा था। एंड somebody who likes to do poetry and who is a poet myself, so I wanted to do something which is free and which can actually serve the society as well. So I started volunteering with an organization named Make a Difference, जिसमें हम काम करते थे विद चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स इन कोलकाता। मेरा काम वहाँ मेनली होता था, आई वॉज हेल्पिंग देम एज द ट्यूटर, जिनको मैं पढ़ाती थी, एंड हम उन्हें फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करते थे। एंड दिस एक्सपीरियंस वॉज फ्रैंकली एन आई ओपनर फॉर मी। एंड इसने मुझे, इनक्वालिटी तो मैंने बचपन में बनारस में भी देखी थी स्कूल में, बट इसने मुझे इसके साथ साथ एक और चीज भी दिखाई कि कैसे एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सिर्फ टीयर 2 या टीयर 1 होना ही जरूरी नहीं है। कम ऑन, आई वॉज इन कोलकाता। मेरी बनारस में रहने वाली उस लड़की को लगता था कोलकाता में सब चीज बहुत ही अच्छा और चमकदार होने वाला है, बट वैसा नहीं था। वहां पे मैं ये देखती हूँ कि वहां के जो सेक्स वर्कर्स हैं वो अपने बच्चों को अबेंडन कर देते हैं, इसलिए ताकि उनको भी सेम तरीके की लाइफ ना मिले, और जिनको अबेंडन नहीं कर पाते उनको मार देते हैं, या फिर वो भी उसी प्रोफेशन में आ जाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों को पढ़ाई की नीड सिखाना was a very difficult task in itself, but I thought of doing that, and मैंने उसको 1.5 साल तक किया। 1.5 साल में मेरी बहुत सारी लर्निंग रही। मैं सोसाइटी की बायसनेस और इस सिस्टम को थोड़ा और समझी। बट देन ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये काम बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाई। तो आफ्टर ग्रेजुएशन started my I started working with automotive industry. So I worked with Tata, and then I also worked with Maruti Suzuki as a production engineer. But deep down, it was something very clear to me that my heart is somewhere else. I don't belong here. I was doing that just to fulfill some of my financial needs, just to support my family. After 2 years of working in the corporate world, I couldn't shake that feeling, and that I wanted to do more, especially to address the educational inequity that we have in our country right now. So that's when I decided to take a very bold step, and I quit my job and I applied for Teach for India fellowship. टीच फॉर इंडिया बेसिकली इज अ फेलोशिप जो यंग लीडर्स को हायर करता है और उन्हें एक अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में 2 साल के लिए भेजता है। वहां उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना होता है, और साथ ही साथ वो अपने भी चेंज पाथवेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो TFI वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। To be very honest, I was placed in Silampur, न्यू दिल्ली, एंड वहाँ की एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में मुझे एलिमेंट्री क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना था। आई वॉज टीचिंग grade 2 and 3 in Silampur community. And I was really in the thick of things there. I think स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था, एंड आप देखोगे मेरी जर्नी में एक ये चीज रही है कि मेरे मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा क्लियर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को एक्सप्लोर करते करते, फ्रॉम टीयर 2 to टीयर 1 एंड देन एंटरिंग अ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। आई रियलाइज दैट एजुकेशन के साथ साथ एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सिर्फ बच्चों का नहीं होना चाहिए, वो टीचर का भी होना चाहिए, वो उस पूरे के पूरे स्कूल के इकोसिस्टम का होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट। And it's also important and crucial to give that right tool and resources to teachers. Being a teacher myself, because to be honest, I was a mechanical engineer. मुझे नहीं आता था कि टीचिंग क्या होती है। मुझे स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी, लिटरेसी, न्यूमरेसी, लर्निंग आउटकम्स, इस सब की कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे लिए इन सबको सीखना खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें लेसन प्लान्स बनाने होते थे, हमें पेडागोजी सीखनी पड़ी बच्चों के लिए, एंड स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू स्ट्रगल, बट व्हेन आई सॉ कि एक अच्छे प्लान्ड क्लासरूम का बच्चों के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू
work towards it and to understand the system even more better. सो फेलोशिप में जीरो नॉलेज से लेकर वो एक एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज बढ़ाने तक मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को भी एक्सप्लोर किया। टीच फॉर इंडिया बहुत अच्छे मेंटोर्स आपको देता है, तो उन मेंटोर्स के साथ मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी की जिसमें मुझे ये भी पता चला कि कैसे हम क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पॉलिसीज का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा जरूरी है एक स्कूल या फिर किसी भी इकोसिस्टम के लिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई रियलाइज्ड इन टीच फॉर इंडिया इटसेल्फ। आफ्टर माई टाइम इन दिल्ली मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैं टीच फॉर इंडिया कोलकाता का एक हिस्सा बनी एज अ फाउंडिंग कोहर्ट। एंड क्योंकि मैं कोलकाता में काम कर चुकी थी तो मेरे अंदर से वो एक था कि मैं दोबारा जाके कोलकाता में टीच फॉर इंडिया के सेटअप करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करूं, एंड आई डिड दैट। आई वेंट टू कैलकाटा एंड आई अगेन started a new journey with different set of classroom, different set of students in my class. ये दो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो मेरा रहा दिल्ली का एंड कोलकाता का, दैट हैज शेप्ड हाउ आई व्यूड द एजुकेशन सिस्टम, एंड it has also helped me understand that how important it is to influence the system and how important it is to work with the key decision makers of policies who are making strategies within the system. After 2 years of fellowship, since I was an engineer and I had that keen interest in technology, I wanted to explore some pathways where I can see how technology could intersect with education, and that's when I entered Lead School. I That's an edtech organization, and I started working in Rajasthan. I was managing some of the affordable private schools of Rajasthan, and my main role was to work with the key decision makers of those private schools to give to by helping them with different edtech tools so that they can improve the learning experiences in their classroom. um, it was a great experience because I could actually understand कि वो स्कूल का ढांचा कैसे बनता है। एक की स्टेक होल्डर, एक प्रिंसिपल और एक हेडमास्टर या एक फाउंडर स्कूल बनाने के टाइम क्या क्या चीज सोचता है, कैसे एजुकेशन मनी के साथ अगेन रिलेटेड है, क्योंकि बुक्स लेना, साथ में टेक्नोलॉजी लेना, टैबलेट से बच्चों को पढ़वाना, ये सारी चीजें प्राइवेट स्कूल में भी एक कॉस्ट के साथ आती थी। पेरेंट्स को भी एक अच्छी कॉस्ट देनी पड़ती है अगर वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एजुकेशन मुहैया कराना चाह रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया दैट अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स का नंबर पब्लिक स्कूल के नंबर से बहुत कम है, फिर भी पेरेंट्स या कोई भी एक नॉर्मल क्यों प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहा है, पब्लिक स्कूल की तरफ नहीं जा रहा है। और इसी टाइम पे मुझे अपना बचपन भी याद आया कि क्यों मेरे पेरेंट्स ने। One यस sec, सुब्रत जी। Iram. या Actually, you are wrong. The number of Indian children in private schools is now more than in government schools. Read यस the Acer report. You are यस saying very little. No. Read the Acer report. Acer is very clear that today the number of children in private schools is more than the number of children in government schools. Indian parents are willing to sacrifice anything for their children's education. I met one driver in Mumbai and I asked him that, have you seen this movie? A very famous movie at that time, doesn't matter the name. He said, no sir. क्या बात है भाई, क्यों नहीं देख रहे? सर वाइफ ने मना कर रखा है, मूवी शूवी कुछ मत देखो, टीवी पे देखो, पैसे बचेंगे, बच्चों की पढ़ाई में लगेंगे। तुमको टीवी देखना है देखो घर में, फिर में फ्री में आता है, मूवी मत जाओ। So the truth is that the parents are not satisfied with the government schools. And read Acer, and you will see that the trend is very clear. So we may see that it isn't there, but the truth is that parents
whatever it is, they will sacrifice to get their children whatever better education they can. And I had gone to one, and there's discrimination in that. That is discrimination against girls. So let me stop. Please continue. No, thank you so much for that, sir. However, what I was saying is that number of private schools and number of public school, not number Yeah, of children. yeah. या सो अगर हम नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें, नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स आर मच मोर देन नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। Yeah, that is स्टूडेंट्स true. का या आसर रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट स्कूल्स पे बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, बट हाँ, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ स्कूल्स, एंड आई वाज नंबर टॉकिंग। ठीक है, बात ठीक है आपकी। हाँ। हाँ जी, तो मैं स्कूल की बात कर रही थी। एंड फिर मैं अपनी भी जर्नी में गई, मैंने भी पीछे वही देखा कि क्यों मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला पब्लिक स्कूल से निकाल के, जबकि राजस्थान में अगर आप देखें, राजस्थान में पब्लिक स्कूल्स बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल कम से। नॉट गेटिंग इनटू दैट असर बिट कि बच्चे कहाँ ज्यादा है, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स प्राइवेट में ज्यादा डाले जा रहे हैं, भले ही प्राइवेट स्कूल के नंबर्स कम है, क्योंकि पेरेंट्स को ये लग रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एंड अगर हम पैसा नहीं देंगे और सरकारी स्कूल में डालेंगे तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, मोस्ट आई थिंक 70 to 80% ऑफ प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स है, वो टीचर्स भी उतने अपस्किल्ड नहीं है, वो नहीं, उतने प्रोफेशनल नहीं है। नहीं है। लेकिन स्टिल पेरेंट्स उस एजुकेशन को उस मनी के पैमाने से नापते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं ना, तो भले ही वो टीचर 12 पास के बाद ही पढ़ाने आ गया है, 5,000 की सैलरी में पढ़ा रहा है, लेकिन वो मेरे बच्चे पे ध्यान देगा, ना कि एक पब्लिक स्कूल का टीचर देगा। एंड ये मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा है जो हमारी सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स के भी अंदर था, इसीलिए उन्होंने भी मुझे प्राइवेट में डालना सही समझा। सो दिस रियलाइजेशन वाज समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल रहा, एंड आई थिंक I felt that something is missing now. I need to get more deeper into this system to understand कि कैसे ये स्ट्रक्चर वर्क करता है, कैसे स्ट्रेटजीज को और इन्फ्लुएंशियल बनाया जा सकता है फॉर to especially to make education more accessible for all the students. And that's when I realized that I need to work with government system, and that's why I made a transition from lead school to Conway Genius. Conway Genius is again an edtech social enterprise, but they basically partner with government schools and public schools. So I started working as on a project that partnered with Niti Aayog to deploy edtech tools in government school in Uttar Pradesh. And it was one of the aspirational districts of Uttar Pradesh, जहाँ पे बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज करने के लिए हम एक एडटेक टूल को डिप्लॉय करते थे। हम बच्चों को टैबलेट्स देते थे कि बच्चे टैबलेट से एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर इट इज ऑल्सो एम्पावरिंग फॉर टीचर्स, बिकॉज टीचर्स को भी अपने लेसन प्लान ड्राफ्ट करने में, अपनी अपनी प्लानिंग में और अपने क्लासरूम को और बेहतर बनाने में उन एडटेक टूल से काफ़ी हेल्प होती थी। एंड इस एक्सपीरियंस ने मुझे पावर ऑफ पॉलिसी बताया कि पॉलिसी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है सिस्टम को टू चेंज एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मास। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड that's when I also realized that it was not just about the policies, but also that uh, working with government, it's also about leveraging data, giving them right data, giving them right tools, and those data is not only to see as कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, but डेटा गवर्नमेंट को और हमें भी साथ साथ हेल्प करता है टू मेक बेटर स्ट्रेटेजीज कि अगर ये डेटा कह रहा है कुछ तो हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इंटायर एक्सपीरियंस वाज समथिंग जो मुझे पब्लिक एजुकेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी बताता रहा, और साथ ही साथ मैंने चैलेंजेस भी देखे। अब अगर मैं बात करूं कि वो जो वाई अभी हमने डिस्कस किया, वाई प्राइवेट स्कूल नॉट, वाई नॉट गवर्नमेंट स्कूल, वन रीजन वाज द लॉस ऑफ पॉलिसी जो कि लास्ट माइल तक आते आते होता था।
स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, वो स्टेट तक आई, स्टेट से वो डिस्ट्रिक्ट तक आई, डिस्ट्रिक्ट से वो ब्लॉक में पहुंची, ब्लॉक से वो क्लस्टर में पहुंची, और क्लस्टर से वो स्कूल में। और तब तक उन पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड फेडिलिटी में इतने सारे लॉसेस हो जाते थे कि लास्ट माइल तक टीचर्स अगेन उतना सपोर्टेड फील नहीं कर रहा होता था। एंड दैट इज समथिंग जो अक्रॉस इंडिया में हमने हर स्टेट में देखा है। Currently, I'm working with Central Square Foundation, where I am focused on making education strategies and solution designing for these public school in districts. And now I'm seeing कि कैसे policy और communication का loss होता है नीचे आते आते, which is a huge challenge in itself. Um, लेकिन अब इसकी सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन इज समथिंग जो कि 1 से 2 साल में नहीं आएगा। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा पाथ है एक्सप्लोर करने के लिए। अ, लेकिन अगर मैं ऐसे समझूं कि जितने ज्यादा लीडर्स और जितने ज्यादा लोग इस सेक्टर की तरफ आएंगे, आई थिंक ये लॉसेस उतने ज्यादा कम होंगे, क्योंकि वर्किंग विद गवर्नमेंट, one thing which I have also realized is that government need good people, good set of solution provider, because there are many people who are providing data to government that this is what our report is saying. ASAR is there for with a report. JPAL also does some different research studies in itself. But what about those solutions? Government need more solution providers and more enablers which can actually work as a partner with district officials, cluster officials, and which can uh, influence the system in itself. यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने कॉन्वर्सेशन को और आगे ले जाना चाहूंगी, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये अगर डिस्कशन जाएगा तो हम बहुत लंबे पाथवे तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं और प्रॉब्लम्स भी उसके बाद बहुत सारी आती जाती है। सो आई वुड ऑल्सो want to टॉक अबाउट कि इस पूरी जर्नी में मेरे कुछ रिफ्लेक्शंस क्या रहे और मुझे क्या चैलेंजेस आए एज एन इंजीनियर, एज समवन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, और एज अ women itself. So I think starting with somebody who has come from engineering, I was well established with my job. I was working in Maruti. I was working as an engineer there. और वहां पे से यहाँ का ट्रांजिशन वाज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स को भी कुछ टाइम लगता था कि मुझे कुछ हो गया है जो मैं ऐसा डिसीजन ले रही हूँ, कि मुझे किसी ने क्या पट्टी पढ़ा दी है कि मैं एक अच्छी वेल स्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ के मैं एक फेलोशिप में आ गई हूँ जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स एंड ऑल्सो टू टेल द सोसाइटी एंड रिलेटिव्स कि आप कर क्या रहे हो। आधे रिलेटिव्स को मेरे लगता था कि मैं एक टीचर हूँ, और वो फिर मुझे समझते थे अच्छा टीचर हो तो इंजीनियरिंग क्यों की, फिर Yeah, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। yeah. वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था सोशल सेक्टर को लेके, क्योंकि Mm. ये एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। आई मीन कुडोज टू दोज जो मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं ह्यूमैनिटीज में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक पॉलिसीज में, और मास्टर इन सोशल वर्क करके आते हैं। बट फॉर पीपल लाइक अस हु आर इंजीनियर, हमारे लिए सब बहुत ही बिखरा हुआ सा था, और हमें बहुत सारी ट्राइंग एंड टेस्टिंग करनी पड़ी कि ओके ये पाथ वर्क कर रहा है, नहीं ये पाथ वर्क नहीं कर रहा है, अभी क्या करते हैं, अभी डिफरेंट चीज को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा अगर इसमें कोई कुछ ROI नहीं मिला तो क्या होगा। बाय ROI माई मीनिंग इज दैट वो जो पर्पस था वो पर्पस नहीं मिला तो क्या होगा, कहीं इस सेक्टर में आके भी हम कॉर्पोरेट तक ही सीमित रह गए तो क्या। So that has been very difficult initially, but then थैंकफुली टीच फॉर इंडिया एक बहुत ही अच्छा स्पेस देता है जिसमें आपके पास एक अच्छे मेंटर्स होते हैं, और उन मेंटर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन पाथवेज को एक्सप्लोर करने में। डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिनके बारे में मुझे मेरी जर्नी में पता चला। अभी थोड़ी देर बाद मैं उन पाथवेज को मैंने एक स्लाइड के रूप में भी प्रिपेयर किया है जो मैं आपको शो करना चाहूंगी, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली टू दोज जिन्हें नहीं पता है कि डेवलपमेंट सेक्टर, इम्पैक्ट सेक्टर, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर क्या डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिनको एक
फेलो या एक इंडिविजुअल एक्सप्लोर कर सकता है. Coming back to the challenges, I feel one of the key challenge was to sometimes to just find that balance between how you interact with your peers and how then you interact with per se teachers, parents or any government stakeholders, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट लिखता है. हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ ये नहीं हो सकता है कि हम उन्हें जाके ये बता रहे हो कि हे, आप लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स में थे, हम आए हैं सोल्यूशन लेके और हम आपके भाग्य विधाता हैं. वी कैन नॉट डू दैट. दैट डजंट वर्क हियर. मूवीज में शहंशाह और शेरशाह अलग थे, यहाँ पे वो काम नहीं करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन स्टेक होल्डर्स के पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंडर की तरह ना जाके एक पार्टनर की तरह जा रहे हो. दैट आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं आपका सहयोग करना चाहूंगी ताकि हम मिलके इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं. कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखेंगे. और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल को आता है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम वी आर बीइंग मिसअंडरस्टूड बाय कि ये एनजीओ से हैं, इनको अपनी इम्पैक्ट रिपोर्ट के लिए काम करना होगा या इनको अपने कुछ केपीआईज को हिट करना होगा एंड दैट्स इट. एंड वहीं पे एक बैरियर आ जाता है कई बार ऐसे सेक्टर में. गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स या फिर टीचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. आपने बहुत सारी स्टडीज देखी होगी जहां पेरेंट्स ने लिटरली स्ट्राइक किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कि भाई हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए. इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो मैंने एक्सप्लोर किया या जो मुझे रियलाइज हुआ while working in an aspirational district is that जब तक वो आपको एज एन आउटसाइडर देखेंगे वो हमेशा इस चीज पे क्वेश्चन करेंगे. दे शुड फील कि आप इनसाइडर हो एंड दे शुड ऑल्सो फील कि आप यहाँ पे एज अ पार्टनर काम करने आए हो, आप उनको हेल्प करने आए हो और आप कुछ टाइम बाद चले जाओगे, आप उनकी जगह हाईजैक नहीं करोगे. एंड दैट इज ऑल्सो अ सस्टेनेबल सोल्यूशन. स्केल करने के लिए या चेंज मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सिस्टम में रह के सिस्टम के कुछ की डिसीजन प्लेयर को और एम्पावर करें और उसके बाद सिस्टम से बाहर आ जाए ताकि वो सिस्टम अपने ऑटो पायलट मोड पे चल सके. अदरवाइज फिर हर पब्लिक स्कूल को टीच फॉर इंडिया बन जाना चाहिए. तो फिर वहां पे गवर्नमेंट टीचर्स की भी क्या जरूरत है. बट नहीं, बहुत जरूरत है और एम्पावर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है विथ राइट टूल, राइट रिसोर्सेज, राइट डेटा सेट्स एंड राइट स्ट्रेटेजीज. And that is something which I have realized in that. Few more of my learning was that how uh, community engagement is vital. As I saw in Selampur and in Kolkata as well, that the role and awareness of parents is very important. It's essential to involve parents. Is essential to involve the community leaders and local organization as well. To those who are working with a local स्कूल सिस्टम और लोकल एजुकेशनल लीडरशिप पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि मेरी भी एक लर्निंग रही है दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है. मेरा ही एक एक्सपीरियंस कोलकाता का था जहाँ पे हमारे टीच फॉर इंडिया के पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता था. हम फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते थे ताकि बच्चों की फाउंडेशन बने. बट देन पेरेंट्स यूज टू आस्क अस कि आप संस्कृत ही पढ़ाइए, आप हिंदी ही पढ़ाइए, आप इतना टाइम सिर्फ एफएलएन पे क्यों दे रहे हैं, आप जीके क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं. जबकि हमारा वो ब्लेंडेड लर्निंग में था, बट दे वांटेड कि कई घंटे सिर्फ जीके पढ़ाया जाए क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है. तो उनकी वो जो समझ थी वो वहीं तक थी कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, बच्चों को ये पता होना चाहिए. उनको ये समझाना कि हाँ जरूरी है बच्चों के लिए जनरल अवेयरनेस एंड बाकी की नॉलेज, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले बच्चा प्रधानमंत्री पढ़ तो पाए, पहले बच्चे का वो ढांचा इतना स्ट्रांग हो कि वो प्रधानमंत्री पढ़े और वो उसको लिखने में सक्षम हो, वो बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने के लायक हो. इन सब चीजों को कम्युनिटी तक पहुंचाना
लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने दिल्ली में भी किया, दैट हम पेरेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स करते थे। हम पेरेंट्स को वंस इन अ वाइल बुलाते थे एंड उनके साथ हम डिस्कस करते थे कि बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी बातों को सुनते थे, उनको अपने क्लासरूम्स में इनवाइट करते थे। इवन दैट इज समथिंग जो हमने लीड स्कूल में भी किया, क्योंकि एडटेक अगेन इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स को लगता था कि बच्चों की आंखें खराब होंगी। पेरेंट्स को लगता था कि क्यों एजुकेशन से पढ़ना जब हमने किताबों से पढ़ के हम अच्छा कर रहे हैं। तो हमने लीड में भी ऐसा किया कि हम पेरेंट्स को बुलाते थे और स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस नाम की कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जो बेसिकली पेरेंट्स को इनवाइट करते थे बच्चे, और टेक्नोलॉजी से खुद पढ़ा के दिखाते थे, ताकि पेरेंट्स के अंदर वो वैल्यू आए और वो समझे दैट 21st सेंचुरी में कैसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स से बच्चों को पढ़ाना। Finally, I think the last reflection would be that we have to be curious and courageous in our journey. Transitioning from engineering to education was a steep learning curve, but इसने मेरे को ये भी सिखाया that अगर वो पैशन होगा तो हो सकता है पॉसिबल। I mean, I was I was shaking when I first entered my classroom. There were 30 beautiful kids and मुझे नहीं पता था मुझे इनके साथ क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। बट देन 6 महीने बाद मैं उस क्लासरूम में जब दोबारा गई, तो आई वॉज देयर विद राइट टूल, आई वॉज देयर विद अ लेसन प्लान, आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड आई डिलीवर्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लास। एंड मेरे बच्चों के लर्निंग ग्राफ को मैंने ऊपर जाते हुए देखा था उसके थ्रू। तो आई थिंक वो करेज बहुत जरूरी है, और उस करेज के साथ साथ वो क्यूरियोसिटी भी। नाउ दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड एट टेक section of public schools, public educational strategy as well. My keen interest is also to indulge into ये पॉलिसीज कैसे फ्रेम होती है। मैं और भी सीखना चाहूंगी कि कैसे हम इन पॉलिसीज को स्टेट और सेंट्रल लेवल पे या मिनिस्ट्री लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स के साथ वर्क करा सकते हैं, कैसे हम उसमें कुछ बेहतर डिसीजन मेकिंग ला सकते हैं। दैट इज समथिंग विच आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर एंड दैट हैज बीन माय लर्निंग सो फार। Now I'll also take some times because I think it's also important for the viewers to understand कि क्या different different process रहते हैं इस सेक्टर में आने के। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी मैंने कैसे इसको एक्सप्लोर किया था। और कोई भी ग्रेजुएट है अगर, और वो एजुकेशन सेक्टर में आना चाह रहा है, तो वो क्या डिफरेंट पाथवेज ले सकता है, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस उसको मिल सकती है उन पाथवेज के जरिए। तो स्टार्टिंग विथ कि कैसे इस सेक्टर में आना होता है, आई थिंक मेरी जो लिमिटेड लर्निंग है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप मास्टर्स में जा सकते हैं, दैट इज वन स्कोप। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी इज देयर, टिस, अजीम प्रेमजी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो देयर, जो अच्छे मास्टर्स प्रोग्राम कराती है, जो डेवलपमेंट स्टडीज और पब्लिक पॉलिसीज की अच्छी नॉलेज देती है और अच्छा प्लेटफॉर्म देती है बच्चों को। इसके अलावा बहुत सारे लोग मास्टर्स करते हैं सोशल वर्क में, कुछ लोग इकोनॉमिक्स और बाकी सोशोलॉजी के थ्रू भी आते हैं। और एक जो मैंने बीइंग एन इंजीनियर जिस पाथ को चुना था, दैट वाज फेलोशिप। सो करेंटली इंडिया में बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं जो एक यूथ को एक अच्छी करियर ट्रेजेक्ट्री देती है। सबसे पहले उसको प्लेटफॉर्म देती है टू अंडरस्टैंड कि उसका इकिगाई क्या है, उसका पैशन क्या है, वो चाहता क्या है, और अगर उस चीज में उसका रुझाव आता है तो वो उसमें कैसे जा सकता है। टीच फॉर इंडिया इज वन ऑफ दैट फेलोशिप। अनदर वन इज गांधी फेलोशिप, जो कि पिरामल फाउंडेशन कराता है। चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप भी एक है, और इसके साथ साथ अशोका फेलोज करके भी अशोका यूनिवर्सिटी एक फेलोशिप कराता है। कुछ इंटरनेशनल लेवल की फेलोशिप्स होती हैं, जैसे एक्यूमेन फेलोशिप्स होती है, एक यंग इंडिया फेलोशिप है, एंड देन वन इज अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन। एंड ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप पे काम करते हैं। टीच फॉर इंडिया
बेसिकली सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है, जिसमें आपको एक क्लासरूम मिलेगी। वही गांधी फेलोशिप है, जिसमें आप एसडीजीज के बाकी के गोल्स भी एक्सप्लोर करते हो। आप हेल्थ में भी जा सकते हो, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, आप हेल्थ वर्कर्स के साथ भी काम कर सकते हो। तो वो भी बहुत डिफरेंट तरीके का काम होता है। इस फेलोशिप की जर्नी में आने के बाद आपको 1 से 2 साल और कई बार 3 साल भी देना पड़ता है। आप एक कम्युनिटी में रहते हो, वहां आपको डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी लीडरशिप को और नुएंस्ड और इनहेंस करना होता है। एंड आफ्टर दैट आपके पास कुछ पाथवेज होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो टू बिगिन योर प्रोफेशनल जर्नी। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई एम गोना टॉक अबाउट, just give me a minute. Let me put you on pause while you start it. We are out of the pause, and Iram will continue, please. Yeah, thank you, sir. So I've just prepared this one slide, and I'm just going to talk about these three different pillars, or per se puzzle pieces, which can help people understand कि क्या different different work streams होती है एजुकेशन लैंडस्केप और एजुकेशन सेक्टर में इंटर करने के लिए। तो अगर आप ये सबसे बड़ा सर्कल देखें तो इट्स ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, जिसमें पॉलिटिक्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडवोकेसीज आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है। सेकेंड सर्कल जो कि इसके अंडर में आता है, दैट इज इनेबलर ऑफ आउटकम्स, एंड द थर्ड वन इज स्कूल इकोसिस्टम। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्कूल इकोसिस्टम। सो स्कूल इस इकोसिस्टम अगर किसी को एक्सप्लोर करना है, ये बेसिकली होता है टू ट्रांसफॉर्म और टू हैव दैट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इन स्कूल लीडरशिप। तो इसमें आप टीचर्स के साथ, स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल्स के साथ और कम्युनिटीज के साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट बच्चों के साथ भी काम कर रहे होते हैं। इसमें आपका रोल कैसा दिखेगा कि आपको टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपको कुछ राइट टूल देते हुए बच्चों को एक बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। आप कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी कर सकते हो इसमें, और आप कई बार स्कूल लीडर्स की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग भी कर सकते हो। इस सिस्टम और इस स्ट्रक्चर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश में काम कर रही हैं, उसमें से कुछ है जैसे लीड स्कूल, जिसमें मैंने काम किया। लीड स्कूल भी टीचर्स को इनेबल करने में काम करता है। सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन इज वन ऑफ इट। एंड बहुत सारे डिफरेंट एडटेक के ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे वेदांतु इज देयर, खान एकेडमी इज देयर, जो स्कूल इकोसिस्टम पे काम करता है। और एक साउथ में देर इज दिस ग्रेट एनजीओ दैट वर्क्स विथ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दैट इज रमन विद्यालय। ये भी स्कूल लीडर्स और टीचर्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो दैट इज वन पाथवे विच यू कैन एक्सप्लोर। इसमें आपको बच्चों के साथ काफी क्लोजली काम करने का भी मौका मिलता है। दी ओनली थिंग इज कि यहाँ पे स्केल बहुत छोटी रहती है हमारी। यहाँ हम एक स्कूल या कुछ सेट ऑफ स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, या अगर हम लीड जैसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, कॉन्विजीनियस जैसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो हम पैन इंडिया में काम कर रहे होंगे। इंडिविजुअल हमारा टच सिर्फ कुछ सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स तक रहेगा। देन नेक्स्ट इज द इनेबलर ऑफ आउटकम्स, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, फंडर्स आते हैं और इंटरमीडियरीज आते हैं। enablers are those which support the stakeholders that work directly with children with time, money on expert और expertise। तो ये गवर्नमेंट के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर का या किसी भी फंडर के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं। जैसे जपैल इज वन ऑफ दैट, डालबर्ग है, सत्वा कंसल्टिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आर्थान है। इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये इन सर्विस प्रोवाइडर्स को या जो बच्चों के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनको सही टूल देती है, कई बार फंडिंग देती है, और कई बार एक्सपर्टीज देती है, या फिर रिसोर्सेज भी देती है, बी इट मैन रिसोर्सेज, मैन पावर, और समटाइम जस्ट some strategies or public goods. The last and the bigger umbrella of it is governance and policies, जिसके अंदर पॉलिटिक्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडवोकेसी आता है एंड इम्प्लीमेंटेशन आता है। अब इसमें इस पाथवे में यू कैन गेट अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली वर्क विद गवर्नमेंट। इसमें आप एज अ कंसल्टेंट उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी को और बेहतर बनाने में,
उनको आप डिफरेंट सोल्यूशन और स्ट्रेटेजीज दे सकते हैं थ्रू डेटा, थ्रू योर ओन एक्सपर्टीज। इसके लिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे काम करती हैं, दैट इज वन इज CMGGA, एंड अदर इज सामग्रा वर्क्स फॉर देम, एंड बहुत सारी जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं लाइक KPMG, PwC, वो भी इन्हीं के साथ काम करता है। सो दीज आर 3 different pathways which anyone can explore after getting into these sector, impact sector. But इसके लिए सबसे ज्यादा important है to have that courage and to have that belief in yourself that initially the journey will not be easy, and to be honest, this journey will never be easy. It's always a struggle, it's always a hustle, because what you are trying to achieve is something very crucial. You are trying to provide accessible and excellent education to all the student, and that is difficult, but that is something जो कि बहुत fruitful रहेगा हमारे future kids के लिए भी, हमारी future generation के लिए भी। तो these pathways are something which all of the viewers can explore if you wanted to enter the development sector like me. I'm gonna pause here, so you're on Iram, mute, sir. thank you so much. You know, the journey is certainly very impressive and very effective. Both. It's impressive because you have made bold decisions, chosen your own path, and you are really a face of young India today, modern young India today. That's the face. You know, of course, there are many faces, but you are one of them. I said, okay, fine. You know, I know what I want to do, and I will do it, and I can do it, and I will see how I can do it. Where are my options? Where do I fit in? Where do I do it? And there are many things in which I don't fit, like engineering. No, and then I can do it, but why should I do it? Okay, good. This is the right approach, and you've chosen something that is absolutely critical. I just want to add one minor point to it, that people have, it's there in the new education policy 2020. It's 3 paragraphs. Nobody has woken up to it. And that is that really the best education is from age 0 to 3. Okay. And if you read the work of this year's economics Nobel Prize winners, one of the conclusions there is not 0 to 3, but 0 to 5. That is where the foundation is laid. By the time they are in 3rd grade, it's already too late. The biggest impact is 0 to 3. And the NEP says that Anganwadi workers will do it. You and I know that Anganwadi workers don't have the time or the skills. They don't know what they're supposed to do. Nobody knows what they're supposed to do. But since you go into I don't know what I'm supposed to do. But since you go into areas, I do talk to people who know what they want, what should be done. But I think I would put that as a challenge to you. Please read NEP 2020. You will find the 3 paragraphs there. And so they know that this should be done, but they cannot get it done. They cannot get it done. It's just nowhere on the horizon of any government and actually of any NGO. And that, I think, is because it combines not just education, it's also parents have to learn, be helped with nutrition, health. It's a complete package, 0 to 3. It actually starts perhaps in the 3rd month of pregnancy, because that's really where it is. And so I shouldn't say 0, 0.3 to 3 years of age. That is where all research shows. And there you don't have really the sort of the contrast of the rich and the poor. Yes, there is a contrast, but it's not as much as in formal education, because the resources
are not that many. It's just that you don't know what to do. You don't know how to do it. And I think if somebody who's like you thinks about it, reads about it, and gets in touch with people, I think we can get started on it. That look, this is really a combination of, as you said, the community, the parents, the food, the health, all that. And the big thing in it is that, in my opinion, now I'm giving you my opinion. I don't know what this is not the time for formal education. It is not the time for learning the alphabet or learning, maybe in year 2, it can start, right? But 0, 1, up till 2, it is not the time to say, okay, can you count? गिनती आती है कि नहीं आती? I know, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पढ़ना आता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What you have to teach are different things. Since you are clever, innovative, I pose this as a challenge to you. No, And thank you you so can much. do it right in the communities that you know. You can go into the underprivileged children of Delhi or Kolkata or Varanasi or anywhere. And actually, the privileged parents also kill their children's creativity, I'm sorry, because they teach them too much of school stuff. They teach them too much of school stuff, must know the names of all the planets, dinosaurs, whatnot. I mean, I don't know what they teach, but they teach a lot of things to their children, okay? Multiplication. You can multiply 3 and by 3 का पहाड़ा आता है इसको तो कोई फर्क ना पड़ता, बेकार की चीज है. So what they should teach in India from 0 to 3, I think that I would pose as a challenge to you, that it is going to be a key challenge for the next generation. By the time they are in 8th grade, it's already done. It's too late, as you know. As you know, that what you teach in class 2 and 3, that is key. But even better and more important is 0 to 5 or 0 to 3. Take it any way that you want. And it will, and none of those fellowships and classes and all are set up for it, nothing. It isn't there, but it's there in the NEP. Somebody wrote it, okay? So if I was going to say it, no one would believe me. I was saying it for 10 years, but it's there in the NEP. So please take, and I'm saying this here so that everybody listens to me and says, listen, this is the key. And the money required is not that much, because you don't set up a school, you don't have tablets, you don't have a classroom. You are just, the child is with the parents. Child is with the parents or family or whatever it is. Right. So you are not going to, so really you are teaching the parents what to do. And there may be, who knows, I don't know. I'll tell you, I don't know. That somebody has to go every week, बच्चे को कोई कहानी सुनाओ, बच्चे को कोई गाना सुनाओ, बच्चे को कोई कविता सुनाओ. उसको बताओ मत कि भाई मैं कविता सुना रही हूँ, कविता सुनाओ. बच्चे को बताओ मत कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या कर रही हूँ. वो करो, अपने आप समझ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो. समझे ना? उसको सिखाना नहीं है, कुछ भी सिखाना नहीं है. दिस माय ओपिनियन. उसके साथ कुछ करना है, उसका दिमाग चलाना है, उसके हाथ चलाने हैं, उसके पांव चलाने हैं, उसकी आंख चलानी है, उसको सोचना है. उससे आप सवाल पूछो कि अगर एक बंदर ने 2 रोटी खा ली तो अब क्या करेगा. कोई आंसर नहीं है उसका, कोई आंसर नहीं है. नो आंसर इज नीडेड. द आंसर इशू इज यू हैव आस्क्ड द चाइल्ड अ क्वेश्चन. Right? No teacher asks children questions.
क्लासरूम में बैठ जाओ, कोई you don't expect them to answer something that you haven't taught, right? But what you have to teach them is to answer something. Since you are not teaching, so you don't Yeah. teach. You just let them talk nonsense. बोलेगा कुछ, बंदर यहाँ जाएगा, शेर ये करेगा, कुछ भी करेगा, बोलने का मौका दो. So please figure it out. I'll be the happiest person since you are so passionate and involved. And the government people don't know a thing. That big circle, completely NEP के आगे, as far as I know, कुछ नहीं. Okay. Actually, thank you for raising that, Subodh sir. Just wanted to add one thing. Since you have mentioned NEP here, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ अभी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है अब दैट 3, 4, 5, 6 के बच्चों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं. बट द चैलेंज एंड द क्वेश्चन हियर इज कि क्या हमारे स्कूल्स अभी इक्विप्ड हैं 3 या 4 के बच्चों को हैंडल करने के लिए, और इसके साथ साथ क्वेश्चन कि क्या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स इक्विप्ड हैं. तो ये नहीं बहुत है. बड़े challenges को नहीं है. और इसीलिए कुछ चीजें जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट यूपी बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ. दे आर हायरिंग एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स फॉर प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, सो दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम सिर्फ पोषण पे हो, न्यूट्रिशन पे हो, और प्रॉपर पढ़ाने के लिए या बच्चों को अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए उनके पास एजुकेटर्स हो. तो दिस इज समथिंग विच यूपी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्राइंग नाउ, एंड अभी सब आइडिएशन फेज में है. बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट दैट, बिकॉज आई ऑल्सो सेकेंड टू दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन प्री प्राइमरी क्लासरूम्स. वो Okay. अर्ली स्टेज So, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Iram, I have the next person coming up. Let's end the recording here. It's Yes, very good, but I still want to keep talking to you offline. Okay. of course sir, Because let's I don't want the definitely. recording to be messed up. But so let's end the recording and I will talk to you offline. Okay. So thanks you. Thank you, Iram. Very, very good. I'm very happy. Let's end this. I'll be back with another young person or an expert soon. Till then, bye, everybody.